روڈ کٹنگ کی مد میں 3 ارب 55 کروڑ روپے وصولی، نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کہتے ہیں کہ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر کی ذمہ دار سوئی گیس کمپنی کی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں بارش سے سڑک بہنے کا معاملہ، روڈ کٹنگ کی مد میں 3 ارب 55 کروڑ روپے وصولی پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے رقم کا دعویٰ کرنے والوں کو ریکارڈ درست کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ شعیب بن ظہیر بولے کہ سوئی صدرن نے کل 1 ارب 98 کروڑ روپے کی ادائیگی کی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر کے ذمہ دار سوئی گیس کمپنی ہے، جن کا کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ سوئی گیس نے ہم سے رابطہ کیا اور اپنے لیٹرز دیے، اس کے بعد ہم نے ان کو اکتوبر 2024 کے اندر ان کو اپنے پرمیشن دی اور 30 مئی 2025 کو ان کو کام اپنا کمپلیٹ کرنا تھا، اور اس کی مد کے اندر جو ہمارے پاس روڈ کٹنگ موصول ہوئی وہ تقریباً 1 ارب 98 جو ہے وہ کروڑ روپے ہمیں موصول ہوئے۔ اس کے بعد جب ہم نے ان کا تعاقب کیا، ان کو جب ہم نے پوچھا کہ وہ اپنا مزید کام کو کمپلیٹ کریں اور تاکہ ہم جو روڈ کٹنگ کے مد میں جو پیسہ آیا وہ ہم گلیوں پہ پیور کا اور اثر کاری کا ہم کام کر کے لوگوں کو ریلیف دیں۔ میونسپل کمشنر نیو کراچی ٹاؤن ایاز حمید اللہ بلوچ کے مطابق سوئی صدرن کو لائنیں بچھانے کا کام مئی کے مہینے میں ختم کرنا تھا، مگر ایک بار پھر ان کی جانب سے دسمبر تک توسیع مانگی جا رہی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ستمبر تک کا ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ سڑکوں کی تعمیر کا ٹینڈر کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ کہ اپنا اسٹارٹنگ ہماری جو ہم نے این او سی دی تھی مئی تک گیس والوں کو، تو وہ تقریباً مئی، جون، جولائی، اگست تک ان کو کمپلیٹ کرنا تھا، لیکن انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ہمیں بولا کہ ہمیں ایکسٹینشن دو دسمبر تک، لیکن ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی۔ اسی لیے نہیں دی کہ پیچھے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی کلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ جو کام مکمل ہوا ہے وہاں پہ ہمیں صرف ان سیکٹروں کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیں تو ہم کام شروع کر دیں، اور ہمارا ٹینڈر پروسیس بھی ہو چکا ہے۔ نیو کراچی ٹاؤن کی 13 میں سے 9 یونین کمیٹیوں میں روڈ کٹنگ کے نام پر سڑکیں، گلیاں ادھیڑی گئیں، جو حالیہ بارشوں کے بعد نو گو ایریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ روڈ کٹنگ کے معاملے پر ٹاؤن حکومتوں کے خلاف تحقیقات کا خیر مقدم۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ نے مطالبہ کیا کہ ٹاؤن حکومتوں کے محکمہ بلڈنگ اور روڈز کے افسران اور کوارڈینیٹرز کے اثاثوں اور اسناد کی تحقیقات کی جائے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ روڈ کٹنگ کے معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے تحقیقات کا خیر مقدم۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ نے وزیر اعلیٰ کے اعلان کو درست فیصلہ قرار دے دیا۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ انفارمیشن سیکریٹری ڈسٹرکٹ سینٹرل بولے، روڈ کٹنگ اور سب سے زیادہ ناقص تعمیرات میں ڈسٹرکٹ سینٹرل سر فہرست ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری نیو کراچی ٹاؤن کے محکمہ بلڈنگ اینڈ روڈز کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر فیصل صغیر اور لیاقتآباد کے کمر پر عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں، شفاف انکوائری کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بلڈنگ اینڈ روڈز کٹنگ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو افسران ہیں اور ان کے جو کوارڈینیٹرز ہیں ان کے اثاثوں کی بھی چھان بین کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل غبن کہاں کیا گیا ہے۔ یہ روڈ کٹنگ کے معاملات میں یہ کوارڈینیٹرز اور جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، بی اینڈ آر ڈپارٹمنٹ کے، یہ ملوث ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نیو کراچی ٹاؤن میں فیصل صغیر ہیں، لیاقتآباد ٹاؤن میں جو ہے نا قمر صاحب ہیں، یہ ان لوگوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ سینئر نائب صدر لیبر ونگ نجم رضوی نے کہا کہ الطاف حسین بریلوی روڈ لیاقتآباد کے محکمہ بی اینڈ آر نے تعمیر کرائی، جو 3 یوم میں ہی دھنس گئی۔ نیو کراچی میں محرم الحرام کے جلوس کے لیے کی گئی روڈ کارپیٹنگ جلوس سے قبل ہی اکڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایسے ناقص کام کرانے والے کرپٹ افسران کی ڈگریاں اور اثاثے چیک کروائے، ہوش ربا انکشافات ہوں گے۔ لیکن نیو کراچی ٹاؤن کے اندر فیصل صغیر ہیں، فیصل صغیر نے روڈ ڈالے محرم کے دوران، اور وہ جلوس سے پہلے ہی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ لیاقتآباد ٹاؤن آ جائیں، وہاں پہ قمر صاحب ہیں، قمر صاحب نے ابھی حالیہ جو بہت اس روڈ کا جو ہے وہ ایشو بنا ہے کہ وہ روڈ جگہ جگہ سے بیٹھ گیا۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ کے مطالبے پر افسران کے خلاف انکوائریاں شروع کی گئی تو اس سے کرپشن کے ریشو میں کمی لا کر ترقیاتی کاموں کے گرتے ہوئے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اب شناختی کارڈ سے منسلک ہوں گی۔ موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تاجر رہنما عبداللہ شاری نے کہا ہے کہ حکومت پہلے 50 لاکھ نمبر پلیٹس جاری کرے، کیونکہ فروری سے اب تک رجسٹریشن کرنے والوں کو نمبر پلیٹس نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ نمبر پلیٹ تب ہی ملکیت ہوگی جب مالکان کے پاس موجود ہو۔ مزید جانتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ میں۔
नंबर प्लेट्स को शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला, मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन ने सवालात उठा दिए। मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन ने महकमा एक्साइज के इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके तहत छोटी और बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट अब शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक की जाएंगी। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले को कम अज़ कम 1 साल के लिए मौखर किया जाए। मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की आप देखते हैं 90% जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो यानी कि जो भी नंबर प्लेट का मालिक होगा वो साल में 4 दफ़ा तो नंबर प्लेट ही चेंज कराता पड़ेगा। अब्दुल्ला शारी ने कहा कि हुकूमत को सबसे पहले 50 लाख नंबर प्लेट्स जारी करनी चाहिए, क्योंकि फरवरी से अब तक जिन शहरियों ने गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई है उन्हें नंबर प्लेट फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट्स मेरी मिल्कियत तब होगी जब वो मेरे पास होगी। फैब से लेके अब तक की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लोगों ने नंबर प्लेट्स की कराई है या एक्साइज के ऑफिस में जाके नंबर प्लेट की अपने रजिस्ट्रेशन कराई है, उनको भी नहीं मिली है। और पिछले 1 महीने से जो मोटरसाइकिल या कार रजिस्टर्ड हो रही है उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आ रही है। तो पहले तो 50 लाख नंबर प्लेट जिनकी रकम ली जा चुकी है उनको मुहैया करें। ताजिर मोटरसाइकिल डीलर्स ने वाजे किया कि एक्साइज डिपार्टमेंट को ताजिरों के साथ मिलकर मार्केटों में फैसिलिटेशन सेंटर कायम करने चाहिए ताकि शहरियों को सहूलत मैसर हो। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों ने आज तीसरे रोज भी ओपीडीज का बॉयकॉट करते हुए शदीद एहतजाज किया। डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। ओपीडीज बंद होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। वजीफे की अदम अदायगी पर डॉक्टर्स ने तमाम ओपीडीज का बाइकाट कर दिया और नारेबाजी भी की। मेयर कराची के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। एहतजाजी डॉक्टर्स ने बुध के रोज मेयर कराची के दफ्तर का घेराव का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हमारा सारा फैसला आगे फॉरवर्ड किया हुआ है बजट के लिए, सैलरीज के लिए, लेकिन वो कब तक अप्रूव होगा कुछ नहीं पता। हम ऐसा लग रहा था कि हम जिस मोटिव से गए थे हम खाली हाथ ही वापस आए। अगला लाएमल हमारा ये होगा, अगर हमारे 1 से 2 दिन तक हमारी डिमांड्स जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, अगला लाएमल होगा इंशाअल्लाह KMC के बाहर हम धरना देंगे। ओपीडीज बंद होने से मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मरीजों को सख्त परेशानी का सामना रहा। मरीजों का कहना था कि दूर दराज से किराया खर्च करके अस्पताल पहुंचे, मगर ओपीडीज बंद होने से मुश्किलात का सामना है। और क्या नाम से आए तो सब बंद है, बच्चों को इतना बुखार और इतना ज़्यादा, इसको भी बच्ची को भी बुखार, इसको भी बुखार है, मगर बंद है। इससे पहले आए तो खुला हुआ था, अभी आए तो सब बंद है। चेकअप तो होते हैं मगर इस दफ़ा आए तो हुए। कल रात से मुझे बहुत परेशानी थी तो अभी आए तो पता चला किराया लगा कर आए और अभी बंद है ये। अब मैं क्या करूँगी, इतनी तकलीफ़ में मैं आई हूँ। अभी कोई मेडिसिन भी नहीं मिलेगी, कहीं दिखा भी नहीं सकती और इतना अफोर्ड भी नहीं सकती दूसरे जगह। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी ने बताया कि कुछ डॉक्टर्स का वजीफा उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी की अदायगी में कुछ वक्त लगेगा। मुज़ाकरात भी हुए हैं और बेहतरी के इकदाम भी जारी हैं। जो रेगुलर तनख्वाह जो कि जुमे को आ चुकी थी पीचीज की 136 लोगों की, वो तनख्वाह इनकी आ चुकी है इनके अकाउंटों में। इसी तरह जो HOs रेगुलर है उनकी भी तनख्वाह आ चुकी है जुमे को। अब जो मसला है वो ये है कि उनके अकाउंट डिटेल हमारे पास नहीं थी, वो हमने सबमिट कर दी है। इस वक्त स्क्रूटनी में है, इंशाल्लाह ताला वो भी 2 दिन में इनकी सैलरी आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो हाउस ऑफिसर्स जो न्यू इंडक्टीज हैं। बाद अज़ां डॉक्टरों ने एहतजाज खत्म कर दिया, ताहम ऐलान किया कि कल मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बारिशों के दौरान करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत केस में के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार करार। पुलिस ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी समेत आला अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की इब्तदाई रिपोर्ट जमा करा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहान गनी और दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत ने मुल्ज़मान को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जामे कराची ने एक बार फिर दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन को दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा पर 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में सेलेक्ट न करने का मामला
डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर तैमूर अली PCB के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से क्रिकेटर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नकूल तलब कर ली। गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्त पर अदालती जुर्माने का केस, अदालती जुर्माना माफ कराने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने जुर्माने की रकम माफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बनारस चौक पर तहरीक इंसाफ के अमन मार्च के दौरान इश्ताल अंगेज तकारीर और हंगामा आराई का केस, पीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार 20 कारकुनान को ATC में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 सगे भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर को मंदी छाई रही। 100 इंडेक्स 677 पॉइंट्स कमी के बाद 1,48,815 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सरमायाकार मोहतात मुनाफे का दबाव, स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छा गए। मार्केट में 100 इंडेक्स दिन भर के दौरान 657 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,48,815 रुपए की कमी सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने एक मौके पर 1,50,069 रुपए की बुलंद तरीन और 1,48,757 की कम तरीन सतह को छुआ। मार्केट में दिन भर के दौरान 26 अरब 34 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। मजमूई तौर पर 469 कंपनियों के शेयर्स की लेन देन हुई, जिनमें से 204 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि 246 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान 29 कंपनियों के शेयर्स मुस्तहकम रहे। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक प्रॉफिट टैगिंग के बाइस मार्केट मंदी का शिकार रही। देखिए, सेंटिमेंट ओवरऑल तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट टैगिंग मार्केट में देखी जा रही है। ये रोल ओवर वीक भी है और यही वजह है कि मार्केट ने आगाज़ तो पॉजिटिव किया था, उसके बाद मार्केट में स्लाइडली हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टैगिंग है 1,50,000 और 1,49,000 का जो सपोर्ट थी वो भी मार्केट ने जो है ना आज ब्रेक किए। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। प्रॉफिट टैगिंग का फैक्टर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के जो टेक्सटाइल की हमारा मेजर इंपोर्ट है, मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर है। तो हम वेरी सून देखेंगे जिस तरह फिगर आ रहे हैं और हमारे इंटरनेशनल जो है बातचीत चल रही है, तो जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है टेक्सटाइल के हवाले से तो टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पे अच्छा रिएक्ट करेगा। सरमायाकारों के मुतात रवैये और फ़रोख्त के दबाव के बाइस मार्केट मंदी का शिकार रही। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मेयर कराची का वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक के हमरा TP3 का दौरा। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने वफाकी वजीर को मनसूबे पर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि TP3 और TP5 के लिए वफाक और KPT से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत माहौल दोस्त मंसूबों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वफाक कराची के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। ऐसे मंसूबे होने चाहिए जिनसे बराह रास्त आवाम और शहर को फ़ायदा हो। KPT को भी शामिल करेंगे ताकि मज़ीद बेहतरी और ताउन हासिल हो सके। कराची में बैनुल-अक़वामी मयार के मंसूबे होना ज़रूरी हैं। सिंध की 52 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। ज़िला शिकारपुर, कशमोर, घोटकी, सखर, नौशहर फरोज समेत दीगर अजला में पोलिंग 24 सितंबर को होगी। कराची में 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP, JUI, PTI के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। कराची डिवीजन की 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी की हतमी फहरिस्त 29 अगस्त को जारी की जाएगी। 5 नशिस्तों में 1 चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 जनरल वार्ड पर इंतखाब होगा। जिला शहर के TMC सुराब बोर्ड की UC 8 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जिला गरबी TMC मंगोपी UC 10 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जिला गरबी TMC औरंगी की UC 1 में चेयरमैन के लिए 18 और UC 7 जनरल वार्ड मेंबर 4 की नशिस्त के लिए 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जिला किमाड़ी TMC बल्दिया की UC 8 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद तक इंतखाबी हलकों में तमाम सरकारी अफसरान के तबादले और तैनातों पर पाबंदी होगी। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कोरंगी 6 नंबर में सेंट्री एसोसिएशन होलसेल मार्केट के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद शेख हबीब ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। मज़ीद जानते हैं मुबश्शिर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
सैनिटरी एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कोरंगी 6 नंबर में सैनिटरी एसोसिएशन होलसेल मार्केट के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। 9 मुंतखब ओहदेदारान में आसिफ गुलफाम, नुमान हाशमी समेत दीगर शामिल थे। चेयरमैन सिंध ताजिर एहताज शेख हबीब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में जहां नए ओहदेदारों ने मुलाकातें की, वहीं महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें फनकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और खूब दाद वसूल की। नायब सदर अब्दुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी अली हशाम और शेख हबीब ने कामयाब उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं के साथ अजरक का तोहफा दिया। शेख हबीब का कहना था कि मार्केट्स की सतह पर इंतखाबात एक अच्छा इकदाम है, जिससे मार्केट के मसाइल हल होंगे और सारिम अपने मसाइल का जल्द अजाला कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि हारने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं और दुकानदार हैं, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दोनों पार्टी है अपना काम, अपना किरदार अपने ताजिरों के लिए, अपने लोगों के लिए मिलजुल के जो है वो अपना किरदार अदा करे। कोई मेरे मुकाबले में नहीं खड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सबने मुझे इज़्ज़त दी और आज अल्लाह की करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से और इस मार्केट की यकजहती की नींव में आज खड़ा हो गया हूँ। आज मेरी कमेटी तैयार हो गई है जो सब तमाम दुकानदारों में मुश्तमिल है। अपील है शेख साहब से कि हम लोगों की ताउन के लिए, आपके पास वसी तजुर्बा है, वो हम लोगों को वो तजुर्बे से हमको आगे बढ़ने की और अमल करने की, वो किस तरह काम करते हैं उसकी हिदायत दे और हमारे सर के ऊपर आपका हाथ का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं पूरी टीम के साथ मिलकर इस मार्केट को आगे से आगे लेके जाऊँ, ठीक है, जिसमें हमारे शेख साहब भी मौजूद हैं, आसिफ साहब भी मौजूद हैं और सबका ताउन ज़रूरी है। तीनों कामयाब उम्मीदवारों ने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में मार्केट के लिए बेहतरीन काम करने का अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन शेरियार अली के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। कराची एक्सपो सेंटर में 21वीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया का इनेकाद। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से 185 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। रॉयल फैन बनाने वाली कंपनी रफीक इंजीनियरिंग का स्टॉल अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। डिस्ट्रीब्यूटर ज़ीशान मलिक कहते हैं कि हमारी कामयाबी का राज बिजली की बचत वाली प्रोडक्ट मुतारिफ कराना है। तफसीलात जानते हैं रमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। 21वीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर का कराची में कामयाबी इनेकाद। एक्सपो सेंटर में सजने वाली नुमाइश में 185 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। नुमाइश में रॉयल फैन बनाने वाली कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट पेश किए। रफीक इंजीनियर का स्टॉल भी आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। रॉयल फैन के डिस्ट्रीब्यूटर ज़ीशान मलिक कहते हैं कि आवाम को 70 साल से बेहतरीन सर्विस फराहम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स पर 5 साल की वारंटी है। 3 साल तक किसी भी तकनीकी खराबी पर होम सर्विस फराहम की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल फैन कंपनी बेसिकली लास्ट 70 ईयर्स से फ़ैन बना रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जाना पहचाना नाम है। पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो लाइफ टाइम गारंटी प्रोवाइड करती थी। अब जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस हैं पाकिस्तान में और बढ़ती हुई बिजली की कीमतों की वजह से आपका इस बिजली का बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके सोल्यूशन के तौर पे हमने इन्वर्टर फ़ैन्स इंट्रोड्यूस कराए। इन्वर्टर फ़ैन बेसिकली 30 वाट कंज्यूम करता है, जो ट्रेडिशनल फ़ैन्स हैं वो 100 वाट कंज्यूम करते हैं। ये तकरीबन 70% की आपकी एनर्जी सेविंग है। नुमाइश में रॉयल फैन के स्टॉल्स पर आने वाले शहरी भी प्रोडक्ट से मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं रॉयल फैन पर भरोसा है, बरसों से अपने घर में इस कंपनी के पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉयल फैन से बिजली की बचत भी होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल फैन की क्वालिटी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल फैन लगे हुए हैं। वॉशिंग मशीन भी हमारे पास इसी कंपनी की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी घर हैं सब में रॉयल फैन। अभी तो AC/DC इन्वर्टर फैन आ गया है तो बिजली की बचत की वजह से हमने उनको चेंज करा अल्हम्दुलिल्लाह। तो रॉयल के जितने भी पंखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह AC/DC 30 वाट सारा हमारे लगे हुए घर में। हवा भी अच्छी है, RPM भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के बिल में काफ़ी बचत है, काफ़ी बचत है। कराची एक्सपो सेंटर में लगने वाली ये अपनी नौयत की मुनफरिद नुमाइश सिर्फ एक रोज़ के लिए लगाई गई थी। तमाम स्टॉल लगाने वाली कंपनियां नुमाइश में आवाम की रश देखकर खुश दिखाई दी। कैमरामैन कयूम के साथ रमशा इस्माइल, T21।